समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. The big Bihar election is now only a few weeks away, and everybody wants the answer to that million-dollar question. Who will win Bihar? Will it be the NDA again, or can the Mahagathbandhan give the NDA this time a run for its money? Is it about Modi versus Rahul, or is it about Nitish versus Tejashwi? And what about the new kid on the block in terms of being a politician, Prashant Kishore? Will the PK factor hurt both sides, or will it hurt one side more? Prashant Kishore himself believes that he will be ya arsh par ya farsh par, that either there will be a dramatic win for his new party, the Jan Suraj, or he will be irrelevant. That is his own prediction made to Mojo Story. How much of an impact will he really have? Will national factors influence this election? Will it be cast all over again? Or will the woman factor prevail as it did in Maharashtra and Madhya Pradesh? In a moment from now, we'll be talking to one of the country's leading political analysts and pollsters, Access My India's Pradeep Gupta. I'm Barkha Dutt. You're with the Mojo Story. The Bihar election is almost here. It's now only a few weeks away. And will this be an election too close to call, or are we seeing a clear pattern emerge? There is talk, of course, about Nitish Kumar's declining popularity. But that said, he has remained the great political survivor, changing sides more times than one can count. The Home Minister's very intriguing statement made to Aaj Tak, where he said that who is the chief minister of a winning alliance will be decided only after the election, has set tongues wagging. Will the BJP dump Nitish Kumar after the election, even if it wins? Or could there be a surprise in store? Remember, Nitish Kumar has changed sides more times than anybody can count. Tejashwi Yadav has finally been declared with some delay the opposition's chief ministerial candidate. Will that be enough for this to become his moment, or will he fall back this time again by close margins? Remember, in terms of vote share in the last assembly elections, both alliances had roughly exactly identical vote shares. It's the vote share conversion into seats that's the big question. And this time there's an added new factor, and that factor is called Prashant Kishore. Prashant Kishore has worked as a political strategist with almost every significant politician in this country. He's now trying out his new avatar, Prashant Kishore, the politician. In an interview to me in Bihar, Prashant Kishore said that even if he gets 125 seats, he will consider that a defeat. In other words, he says the Jan Suraj will either script history or will be irrelevant. Pradeep Gupta, one of India's leading pollsters, political minds, is with us. Let's welcome him to the program as we try and make sense of the Bihar election. Namaskar, happy Diwali. Good to see you, Pradeep ji, after a long time. ये बताइए, नमस्कार, ये बताइए, are you going to stick your neck out? Are you going to make a prediction, or are you going to say too close to call? क्या assessment है बिहार की? Thank you, Barkaji, for inviting me here in your program. As far as assessment as on today goes, there are two new dynamics in the Bihar politics has taken place in the recent past. One, as you rightly pointed out, the emergence of the PK, the Prashant Kishore new party. Two, the SIR. So these are the two very new factors for which, for that reason, it is difficult to draw any kind of inferences from the past voting pattern. Of course, we do the ground surveys, etc., but those ground surveys, the insights are always clubbed with the past inferences on constituency-wise constituency. So these are the two phenomena which took place in the recent past. For that matter, it is very difficult for people like us
to say or predict anything at this point of time. So for as far as the prediction goes, we would wait till the last ball is bowled, and then only we will be able to come out with some kind of a firm prediction, I would say. Fair enough, the two new factors, the debate around the revision of rules and the Prashant Kishore factor. But one of the interesting comments, Pradeepji, you have made is you have said that Nitish Kumar is the only common denominator. And you have also spoken about how the voters of Bihar, although the JDU, Nitish Kumar and the BJP are in alliance, the voters may actually see the BJP itself as a kind of alternative to Nitish Kumar. Now, this is a very interesting formulation. And I'll tell you that on my visit to Bihar, when I was talking to NDA voters, one of the things that they said was that Nitish Kumar may not come back as chief minister, but they still thought that the NDA could come back as chief minister. So I want you to explain this argument of yours that before Tejasvi, there is BJP itself that is an alternative. Okay, so before try and do the kind of analysis of the assessment or likely outcome of the any election for that matter, the first and foremost is the assessment of anti-incumbency factor. The kind of incumbent government, their performance, and how people pursue that vis-a-vis the performance. तो अभी नीतीश कुमार के संदर्भ में though there is an anti-incumbency of 20 years for नीतीश कुमार, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा इफ लगा हुआ है और बट्स लगा हुआ है इन द सेंस नीतीश कुमार के अगेंस्ट तो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ ज्यादा समय पर बीजेपी भी रही हुई है एनडीए के तौर पे, और कुछ समय और अच्छा खासा सब्सटैंशियल समय खासकर पिछले 2 टर्म में 10 सालों में नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस और आरजेडी भी रही हुई है. तो क्या ये जो एंटी इनकम्बेंसी है इट इज ऑल क्लब टुगेदर. तो जो एंटी इनकम्बेंसी की भी जो कहानी थी, द थर्ड डायनामिक्स इमर्जिंग इन बिहार इज दैट दो नीतीश कुमार इज द कॉमन डिनोमिनेटर as far as the 20 years anti-incumbency goes, and there is a fatigue factor, not a single % doubt on anybody's mind. But at the same time, there is a larger section of society, particularly loyal voters of the BJP, this time eyeing some or sensing some kind of this thing, and खासकर उस वजह से कि उड़ीसा जैसे और कर्नाटक जैसे राज्यों के अंदर, नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्यों के अंदर, असम जैसे नॉन स्पीकिंग, त्रिपुरा जैसे प्योर टिपिकल लेफ्ट रूल्ड स्टेट में जो है बीजेपी की खुद की अपने दम के ऊपर सरकार है. मणिपुर जैसे स्टेट कितने गिनाते जाएंगे, आएंगे नहीं. तो क्यों ना बिहार में भी इस बार जो है वो बीजेपी की खुद की सरकार हो, और उसका कारण वही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट हो सकती है, क्योंकि 20 साल का सवाल है, वो चीफ मिनिस्टर कॉमन फैक्टर रहे हुए हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है और बीजेपी भी अलायंस के अंदर शामिल तो है. एक तरह से आप कह रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ज्यादातर नीतीश कुमार से एसोसिएटेड है और बाकी दोनों साइड्स में बंट जाती है बिकॉज बोथ हैव बीन इन अलायंस विद हिम. एब्सोल्युटली. एंड उसमें भी फिर आगे चले साथ में, तो अब नीतीश कुमार जी के पहले आरजेडी ने 15 साल तक अच्छा खासा रूल किया इन दैट सेंस, उसके पहले कांग्रेस ने किया हुआ है. तो अब नया क्या बचता है? नया केवल बीजेपी का रूल लोगों को देखने के लिए बचता है, खासकर तब जबकि पूरे देश के लार्जर स्टेट्स और बड़ी संख्या में स्टेट्स में बीजेपी की रूल्ड गवर्नेंस है, और जिसका स्वाद जो है आज तक बिहार ने नहीं चखा है. बिहार कहने का मतलब है लालू नीतीश से 35 साल से 35 इयर्स, मोर देन 3 डिकेड्स इन्हीं का प्रशासन शासन देखते आए हैं. तो नेचुरली और जनरेशन शिफ्ट, डेमोग्राफिक शिफ्ट भी बड़ी संख्या में हुआ है. खासकर एज की बात करें तो न्यू तबका, नए लोग, नई सोच हमेशा चाहते हैं. आई मीन दीज आर द ऑब्वियस फैक्टर. फॉर दैट रीजन आई थिंक when you say anti incumbency, but anti incumbency का बेनिफिट जो है बीजेपी को भी जा सकता है, बीजेपी को भी जा सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी को ही जाएगा. दिस इज द पॉइंट. बट कैन आई आस्क यू, व्हेन अमित शाह मेक्स द कमेंट जो उन्होंने आज तक में एक कॉन्वर्सेशन में किया, उनसे पूछा गया कि कौन होगा अगर एनडीए जीतती है, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा,
तो उन्होंने कहा उसका अपना प्रोसेस है, वो तय होगा। अब हमारे पास इसके मॉडल्स हैं। अगर आप महाराष्ट्र देखें तो एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में कैंपेन फाइट की अलायंस ने और फडणवीस जी बने मुख्यमंत्री। बहुत से लोगों ने वो बयान सुनकर यही नतीजा निकाला, लिटिल बिट लाइक यू आर सजेस्टिंग, दैट नीतीश कुमार, इवन इफ द एनडीए विंस, इज नॉट लाइकली टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। क्या आप इससे सहमत है? नहीं, देखिए बरखा जी, बिल्कुल जो आपने कहा विच इज ऑन रिकॉर्ड, ये सारी बातें जो आपने बताई है, जहां तक मेरे सहमत होने का या ना होने का सवाल होता है कि ये प्योरली प्रोगेटिव ऑफ बीजेपी का और उनकी टॉप लीडरशिप का है। मैं उसके अंदर ना ही टिप्पणी करूं या कमेंट करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जमीन के ऊपर परसेप्शन होता है, ज्यादा करके मैं उस दिशा में कमेंट करने की कोशिश करता हूं। जी, with your permission, I will play out a small clip from प्रशांत किशोर। उनकी जो पुरानी इंस्टिंक्ट है टू मेक अ फोरकास्ट, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा कि अगर उनकी 25 से ज्यादा सीट्स आती हैं तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे। The last point may have been rhetorical, but फिर भी I will just play out this clip and then we will talk a little more about some very interesting forecasts made by Prashant Kishore, who is of course also a factor now in these elections. Take a look. मुझे ये बताइए, आपने बीच में कहा कि एक तरह से नीतीश कुमार की स्थिति आज देख के आपको मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की याद आती है। आपको पर्सनली नहीं लगता है? I see the metaphor कि नहीं, जैसे पर्सनली डिसेंट। देखिए, मैं नीतीश, आप 15 में नीतीश जी का इंटरव्यू लेने आए थे जी, मैं नीतीश जी की मदद कर रहा था उस समय 15 में। मैंने नीतीश कुमार का वो आंच देखा है, वो रुतबा देखा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आकर ये कह दे कि भैया ये फेवर हो जाए। आज उनकी स्थिति यह है कि नीतीश कुमार को पता भी नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। फेसबुक से ही 10-10 हजार करोड़ रुपए की स्कीम घोषित हो रही है। नीतीश कुमार बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार है, आज भी ईमानदार है, लेकिन जैसे मनमोहन सिंह जी बहुत ईमानदार थे, लेकिन यूपीए 2 को करप्शन और भ्रष्टाचार के नाम पर देश से हटाया गया। कमोवेश वही स्थिति आज एनडीए की बिहार में है। नीतीश कुमार ईमानदार हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन शारीरिक मानसिक तौर पर ही इज नो मोर इन कंट्रोल। और पूरे बिहार में जिस तरह की लूट मची हुई है, ऐसा कभी हुआ नहीं। आपने 2 और चैलेंजेस रखे हैं, एक की जेडीयू के 25 से ज्यादा सीट्स आ ही नहीं, कहाँ आएंगे, और आप राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़। क्या हम लोग कौन राजनीति कर रहे हैं? तो एक आपका दावा है कि 25 से ज्यादा नहीं आएंगी तो आप, यू विल नॉट कंसिडर योरसेल्फ पॉलिटिकली स्मार्ट, तो आप राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे। 25 सीट तो जदयू को आ ही नहीं सकता। दूसरा, आपने कहा है कि वो मुख्यमंत्री, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? पहली बात कि 25 सीट आएगी नहीं, तो जब 42 पर रो के भाजपा ने बनाया था तो 25 पे तो निश्चित नहीं बनाएंगे। तो 42 पे जब रो के बनाया था तो 25 पे तो नहीं बनाएंगे। सो ही इज गिवन अ स्पेसिफिक फिगर। उन्होंने कहा है कि 25 से ज्यादा नीतीश के नहीं आएंगे, और कुछ भी हो जाए नीतीश विल नॉट बी द चीफ मिनिस्टर। ना मैं इसमें एक प्रश्न जोड़ देती हूं। मेरा प्रश्न ये है कि प्रशांत किशोर ने अपनी कैंपेन में बीजेपी को भी निशाना बनाया है और नीतीश को भी और तेजस्वी को भी, एंड ही हैज मेड सम करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हु इज ऑफ द बीजेपी। उन्होंने वापस प्रशांत किशोर पे अपने आरोप लगाए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप कहते हैं कि द वोटर ऑफ बिहार में सी द बीजेपी एज एन ऑल्टरनेटिव बिफोर द वोटर सीज तेजस्वी एज एन ऑल्टरनेटिव, तो बीजेपी का चेहरा कौन है बिहार में? एक सवाल। दूसरा, क्या ये जो लगातार प्रशांत किशोर की तरफ से एलिगेशंस आ रहे हैं करप्शन के, उनसे कितना फर्क पड़ सकता है बीजेपी की अपनी स्टैंडिंग पे? देखिए, जो दूसरा सवाल आपने बोला, मैं उसका पहले ही जवाब दे देता हूं। जहां तक आपने पूछा कि बीजेपी का चेहरा कौन, तो आई एम नॉट अ स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी, बट बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रैक और द ट्रेंड्स, हमने मध्य प्रदेश जैसे राज्य जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान आज के सारे चीफ मिनिस्टरों को यदि सामने रखे, सारे अक्रॉस द लाइन, सो आई एम मोर देन कन्विंस्ड, कम से कम शिवराज सिंह चौहान सारे चीफ मिनिस्टरों में बहुत ज्यादा ऊपर रेट किए जाएंगे। बट उसके बावजूद भी वहां पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी को डिक्लेयर नहीं किया था चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इन द रिसेंट पास्ट 2023 असेंबली इलेक्शन। बीजेपी का चेहरा कौन, तो बीजेपी का चेहरा तो एक ही है, केवल मोदी है। ये इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं है, किसी को कोई सवाल नहीं है। बीजेपी का चेहरा कौन, तो बीजेपी का चेहरा एक ही है, जो नरेंद्र मोदी है।
चीफ मिनिस्टर का जहां तक सवाल है चेहरा कौन, उसकी तो उन्होंने घोषणा नहीं करी। उन्होंने अभी बताया कि वो बाद में बताया जाएगा, जो कि पिछले 3, 4, 5 चुनाव में देखें, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो, वो जीतने के बाद ही उन्होंने चेहरा बताया है। और तो वो क्या भी बताया पर क्या इलेक्शन हो। पर अगर आप देखें तो जो असेंबली के चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव के बाद, प्रदीप जी, कुछ हद तक मोदी जी को एज अ ब्रांड उन बैटल ग्राउंड से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रखा गया। इट्स नॉट लाइक अर्लियर। खास करके अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के बारे में सोचें, तो जब आप कहते हैं कि बीजेपी का चेहरा कौन, एक ही चेहरा मोदी, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट यू आर मेकिंग दैट पॉइंट, डू यू बिलीव दैट national factors can work in a very complex battleground like बिहार, जहां आपने खुद ही पॉइंट आउट किया है कि पिछले चुनाव देखे तो द वोट शेयर्स वर ऑलमोस्ट इक्वल बिटवीन द टू अलायंसेस। तो कितना ही फर्क एक नेशनल ब्रांड का पड़ सकता है, एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट इन टर्म्स ऑफ द बीजेपीज एफर्ट्स टू पुट सम डिस्टेंस बिटवीन मोदी एंड असेंबली इलेक्शंस? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक है कि नेशनल मुद्दे, आपने कहे नेशनल मुद्दे जो होते हैं उसमें बड़े टॉप ऑफ द लाइन दो चीजें बड़ी होती हैं। एक होती है जो जनता के सरोकार के विषय होते हैं, एक होती है प्राइस राइज जिसको आप महंगाई कहते हैं, और एक दूसरा होता है टू द लार्ज एक्सटेंट एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो बड़े होते हैं जो किसको हम प्योर नेशनल मुद्दे के ऊपर उसको तौलते हैं। रह गई बात ब्रांड की बात, तो मुद्दे अलग है, ब्रांड अलग है। व्हेन यू से ब्रांड, हियर द पर्सनालिटी, एंड व्हेन इट कम्स टू द पर्सनालिटी ऑफ नरेंद्र मोदी, तो हम ये सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक वोट बैंक बन चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि पुराने समय में नेहरू और गांधी फैमिली की हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने तक। उसी हिसाब से बीजेपी, और बीजेपी में भी प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक ब्रांड इक्विटी बनी है क्रॉस द पार्टी लाइन। हमने, आप बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ उसको देख लें कि 37% वोट मिला था असेंबली इलेक्शन में, जैसे आपने बताया एनडीए को, वो 37 बिकम 48%। आप चीज को समझिए, यहाँ पर ही अंतर आप देख लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 37 बिकम 48% फॉर एनडीए, एंड महागठबंधन के लिए दैट 37 बिकम 40। देखिए, दोनों जगह पे नेशनल इलेक्शन से तो यहाँ 3% का इजाफा हुआ, 3% पॉइंट का, और वहां पर इजाफा इतना बड़ा 11 पॉइंट का, यानी कि 3 फोल्ड। आप देख रहे हैं, यहाँ 3 का हुआ तो वहां 11 का हुआ। तो इस बात आपको प्रमाण से आपको आंसर मिल गया कि मोदी और मोदी के सामने जो दूसरे लोग हैं, जनता के नजरिए से वो क्या है, दे बिलीव कि मोदी कुछ ना कुछ तो उनका भला कर ही देंगे, जो भी मोदी। मेरा सवाल, मैं आपसे सहमत हूं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ब्रांड, आई एग्री विद यू, बट मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। कुछ चुनाव होते हैं जो स्थानीय मुद्दों पर तय होते हैं, चाहे मोदी की ब्रांड कितनी भी ऊंचाई पे हो, मोदी इज बाय फार miles and miles ahead of any other political brand and national perception, I agree. लेकिन every election is not decided on that brand. Some elections are decided on other factors. तो मैं ये आपसे समझने की कोशिश कर रही हूं कि मोदी का ब्रांड ठहरा जहां अपनी जगह है, जो आपने जैसे समझाया, क्या ये इलेक्शन स्थानीय मुद्दों पर डिसाइड होगा? क्या ये इलेक्शन ब्रांड के कॉन्टेस्ट में डिसाइड होगा? बिकॉज इफ इट्स तेजस्वी वर्सेस मोदी, ऑब्वियसली मोदी इज द डोमिनेंट ब्रांड, राइट? बट व्हाट इज द फैक्टर्स समझने पड़ेंगे ना कि ये चुनाव किस बेसिस पे चुनाव डिसाइड हो रहा है। तो बरखा जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सवाल होना ही चाहिए, बड़ा वाजिब सवाल है आपका। तो हर इलेक्शन में, जहां तक जैसे बोलते हैं ना, एक रेसिपी में सारे इंग्रेडिएंट्स का अपना एक रोल होता है प्ले करने के लिए। वो ठीक है कि ब्रांड मोदी का सबसे बड़ा रोल है, विच इज फेयर एंड फाइन, बट एट द सेम टाइम यदि दो पार्टी के बीच में या दो गठबंधन के बीच में, कंटेस्टिंग गठबंधन के बीच में अंतर कम हो, तो ये बड़ा फैक्टर हो जाता है। लेकिन यदि दूसरे मुद्दे भी ज्यादा संख्या में मौजूद हो, तो उसके ऊपर लोकल मुद्दे, अपोजिशन में जो पर्सनालिटी है या लीडरशिप है, उसका भी बड़ा होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी का भी बड़ा एक रोल होता है। और तीसरी जो चीज होती है सबसे बड़ी, जनता ये देखती है कि
आगे आने वाले 5 साल, जो मैं हमेशा अपने टिप्पणियों या कमेंट में कहता हूं कि जनता जब वोट करती है तो वो मेरी बात मान लीजिए आप, डायरेक्ट इनडायरेक्टली 80% जो 100 वोट पड़े, जो नहीं आए मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा, जो 100 वोट आए उसमें 80% लोग का जीवन, लाइवलीहुड इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट ऑफ द डे. When I say Which government of the you day, mean central government? You mean the national? I mean any government for that, जो जिसका सरोकार है वो उसका सरोकार है. लाइक हेल्थ और एजुकेशन और रोड, बिजली, पानी यदि स्टेट का मुद्दा है तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे मैंने बताया प्राइस राइज और डीजल पेट्रोल के दाम वगैरह वगैरह, वो सारे सेंट्रल का मुद्दा है तो वो उसके ऊपर. जैसे रोड को ही ले लीजिए, एक रोड जिसके लिए म्युनिसिपैलिटी जिम्मेदार है, दूसरी रोड स्टेट हाईवेज है उसके लिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और नेशनल हाईवेज है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द डे. तो जब भी लोग इलेक्ट करते हैं किसी भी लीडर या पार्टी को, बड़ा सोच विचार करके आकलन करके करते हैं कि वो किसके, इफ नॉट दिस देन होम टू वोट फॉर. यानी इनकम्बेंट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस यदि अच्छा नहीं है, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी के चश्मे से देखते हैं, तो किसको वोट करें. यदि सामने क्रेडिबल चेहरा खड़ा हुआ है, कुछ टाइप की न्यूनेस है, न्यूनेस के अंदर कुछ वो प्रॉमिसेस लेके आ रहे हैं बड़े कन्विक्शन के साथ, तो जनता वो भी उस चीज को ध्यान देती है बियॉन्ड मुद्दे और बियॉन्ड जो है इनकम्बेंट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड वगैरह वगैरह. तो ऐसे बतेरे एग्जाम्पल्स हैं जिसके चलते जनता ने कई बार बहुत नए फैसले लिए, बोल्ड फैसले लिए. और बिहार की जहां तक बात करें तो बिहार की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सबको पता है, वो बहुत नीचे आती है. बट एट द सेम टाइम हु कैन इम्प्रोवाइज दीज थिंग्स, वो देखना है. दूसरा है कि अब प्रशांत किशोर जिस हिसाब से आ रहे हैं, बट प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई, लाइफ में यदि आपको कुछ करना है सब्सटैंशियल इनफ, तो उसके लिए ग्रेजुएशन करना है तो आपको 15 साल लगते हैं. जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना चालू करते हैं और ग्रेजुएट होते हैं तो 12+3 का कम से कम आंकड़ा लगता है. उसके बाद आप कहीं पहुंच पाते हैं. पहली बार में तो लोगों के माइंड में सिंबल को रजिस्टर करना इतने बड़े राज्य में एक चैलेंज होता है अपने आप में. नो डाउट प्रशांत किशोर ने अपनी अच्छी मेहनत की, जबरदस्त मेहनत की है, 3 साल से वो लगे हुए हैं. बट हैविंग सेड दैट, जब वोटिंग डे के दिन उनको मोबिलाइज करके वोटिंग मशीन तक लेके जाना और मशीन तक वो रजिस्टर रह पाना, आपने खुद देखा होगा. आप यदि किसी से किसी का नाम पूछते हैं तो थोड़े दिन बाद यदि आपको मिलता है तो इतना धूमिल होता है, फिर भी आपको पूछना पड़ता है, अनलेस कि उसका रिमाइंडिंग वैल्यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपको 10-12 बार रजिस्टर ना किया गया. जी, आपने कहा कि 2 नए फैक्टर हैं, एक पीके का फैक्टर है और एक है एसआईआर का. तो पीके के फैक्टर से शुरू करते हैं. 2 सवाल है यहाँ पे. विच साइड विल ही हर्ट मोर, विच साइड विल ही डैमेज मोर? सेकंड, कैन हिज पार्टी स्प्रिंग अ सरप्राइज? अब उनका अपना क्या कहना है, ये मैं थोड़ा सा, अगर आप परमिशन दे तो एक और क्लिप आपको प्ले करके दिखाऊंगी, एंड देन वील कम बैक टू हु ही मे डैमेज मोर. लेट्स टेक अ लुक. लोगों ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि आपको बेस्ट के सिनेरियो में 130-135 सीट आ सकता है, सरकार आपकी बन सकती है. जी, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, फिर रिपीट कर देता हूं. अगर जनसुराज को 125-130 सीट आया तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा, जनसुराज की हार मानूंगा, अपने प्रयासों की विफलता मानूंगा कि 3 बरस मैंने अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाया है, सब कुछ झोंका है, जो भी बुद्धि, समझ, संसाधन भगवान ने मुझे दिया है, सब कुछ लगाने के बाद अगर मैं सिंपल मेजॉरिटी लेकर आऊं, जनसुराज को 125-30 सीट आएगा तो उसको मैं हार मानूंगा. तो उसके नीचे तो सब हार ही है. That's very ambitious. इट्स नॉट एम्बिशियस. जनसुराज की पूरी स्ट्रेटेजी है जो हम लोगों ने प्रयास किया है. और मैं बिल्कुल कैमरे पे कहता हूं, मेरे साथी कई बार उसका विरोध भी करते हैं कि भैया ऐसा क्यों कहते हैं, कहिए कि हम जीतेंगे. मैं वो नहीं कहता. मैं कहता हूं जनसुराज या तो अर्श पे या फर्श पे. जनसुराज या अर्श पे या फर्श पे. So this is what he is saying. Now he's also decided since this interview to not contest himself. पहले चर्चा चली थी कि क्या वो खुद स्वयं तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में कंटेस्ट करेंगे या नहीं, वो नहीं हो रहा है. आपको क्या लगता है, ये जो उनकी क्लेम है ये रिटोरिकल है? आप इसको रेटरिक के तौर पे देखते हैं या अर्श पे या फर्श पे, कि आप इसको लिटरली लेते हैं? प्रदीप जी. नहीं, अब बहुत अच्छा सवाल है. अब मैं आंकड़ों के नजरिए से बताता हूँ क्यों ऐसा कहा प्रशांत किशोर ने. देखिए, पिछले
4 चुनाव ले लीजिए, 20 साल में असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूं, बिहार में हमेशा 25% के आसपास मुख्य 2 प्रतिद्वंदी पार्टियों को छोड़ के अदर्स के वोट, छोटी या अदर्स यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के वोट आते रहे, 25% ही मान लेते हैं, जी। चलो कैलकुलेशन के लिए। जी। और बिहार में करीब 17% जो है मुस्लिम वोट, तो वो 17 और प्रशांत किशोर का जो गेम प्लान है, जिस गणित के तहत शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा, मैं तो गणित का आदमी हूं, तो जी। मैं गणित के नजरिए से बताता हूं, उस 25 का 2/3 ले लें तो करीब 16-17% वोट वो, और 17% मुसलमान का एक मुश्त वोट, जस्ट कोई 100% किसी को वोट नहीं करता, लेकिन बल्क, तो 17 और 17 34%। तो जब यदि त्रिकोणीय मुकाबला हो और जिस पार्टी को यदि 34-35% मिल जाए तो वो जीत जाता है, क्योंकि 34-35% मतलब 100 से नहीं होता, 10% तो आपको रिजर्व रखने ही पड़ेंगे अदर्स और इंडिपेंडेंट के लिए, तो आपके पास बचते 90 हैं। 90 में से जिस भी पार्टी को 34-35% वोट मिलते हैं वो अच्छा खासा यानी 2/3 मेजॉरिटी तक जाने की क्षमता रख सकता है। तो इस नजरिए से उन्होंने कहा है, और मुसलमान के इसी नजरिए से उन्होंने कहा है, भाई मुसलमान तो तभी वोट दे पाएंगे किसी को भी यदि वो ये पाएंगे कि ये पार्टी यानी प्रशांत पीके की पार्टी एनडीए को हरा पाने के लिए सक्षम है, तो पूरा का पूरा एक मुश्त वोट उनके तरफ माइग्रेट हो जाएगा, उनके तरफ कंसोलिडेट हो जाएगा, एंड दैट इज व्हेन ही इज सेइंग कि वो उनकी जीत बड़ी होगी। और यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने जैसे कहा कि वो जीत एकदम 10% के नीचे वाली पार्टी होगी, या 10 सीट के नीचे वाली पार्टी, जो उन्होंने कहा, उन्होंने परसेंट नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि 10 सीट के नीचे वाला कहा। इस नजरिए से उन्होंने इस बात को कहा हुआ है, और कोई दूसरी कारण नहीं है इसके। वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगर मैं इसको आगे आपको पुश करूं, हु डू यू थिंक ईदर वे, चाहे वो 10 से नीचे आए, चाहे वो उनकी जो गणित है which is 25% others plus a section of the Muslim vote, वो सच आती है, किस साइड को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा? he is a new entrant in the game, he will hurt one side more than the other, or will he hurt both sides equally? बहुत अच्छा, ये भी बिहार के अंदर बहुत बड़ी चीज है। बिहार के अंदर 3 ही डेमोग्राफी हैं जो डिसाइसिव होंगी। वो एक है सबसे बड़ी चीज जाति। जाति का मतलब है करीब करीब 80-90% लोग वोट जाति के आधार पे वोट करते हैं बिहार में। आज कुछ बदला नहीं है बिहार में, हमारे लिए कुछ बदला हो, बट बिहार बिहार ही है, अभी भी वैसे था, अभी बाय एंड लार्ज वैसे ही है। दूसरी बड़ी डेमोग्राफी है महिलाओं की, जो 50। तीसरी बड़ी डेमोग्राफी इस बार और पिछली बार भी थी, वो है यूथ के साथ प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। प्रोज इन द सेंस कि यूथ आज के समय में अपने पेरेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। पुराने समय में पेरेंट्स बताते थे यूथ को कि कहाँ जाना, किसको वोट करना और क्यों करना। आज के जमाने में यूथ जो होता है, 18 से 25 साल के जो बच्चे होते हैं, वोटर होते हैं, वो बताते हैं पेरेंट्स को और इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई नहीं, यहाँ वोट कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उस लहजे से बात करें तो यूथ तो केवल 18 से 25 उम्र की बात कर रहा हूँ, वो 100 वोट जो पड़ते हैं उसमें करीब 15% का समावेश है, जो कि उस लिहाज से बहुत कम है। तो अब इसको डिकोड कीजिए कि प्रशांत किशोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां तक जाति का सवाल है, प्रशांत किशोर अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं। अपर कास्ट का वोट जो बात कर ले, प्योर अपर कास्ट, टोटल सब मिला ले, भूमिहार, ब्राह्मण और दूसरे जो कायस्थ और इस तरह के जो भी आते हैं ठाकुर, तो आप पाएंगे 17-18% होता है। तो उस लिहाज से प्रशांत किशोर अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो वहां से वो थोड़ा बहुत एनडीए का वोट लेंगे। दूसरी डेमोग्राफी पे आता है। दूसरी डेमोग्राफी है महिलाओं की। हम सबको पता है कि महिलाओं के मामले में प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड नॉट ओनली नीतीश कुमार का बल्कि मोदी जी का भी प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां भी महिलाओं के बड़ी संख्या में वोट पड़ते हैं वहां पे ज्यादा करके, अगेन मैं ज्यादा करके बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली में महिलाओं का ज्यादा वोट पड़ा आम आदमी पार्टी को, लेकिन जीती जो है बीजेपी असेंबली चुनाव में, ठीक है। तो मैं ज्यादा करके की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर एनडीए को फायदा होता हुआ है। तो वहां, और आज प्रशांत किशोर के पास महिलाओं के लिए
अकेले महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी कार्ड या क्रेडेंशियल नहीं है जिसके चलते वो ये कह पाए कि महिलाएं मुझे बड़ी संख्या में वोट करेंगी बजाय कि एनडीए को या दूसरे लोगों को। तीसरी बड़ी यूथ जो है वो सामने सामने नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा दो लोगों की तरह आज की डेट में आकर्षित है। एक है तेजस्वी यादव के प्रति और दूसरा है प्रशांत किशोर के प्रति। तो जहां तक यूथ का सवाल है, यदि वो भी 17-15% है मैंने बताया, और इन्फ्लुएंस भी कर पाए तो उस लिहाज से वो महागठबंधन या तेजस्वी को डैमेज करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से आपको इसमें भी आकलन मिल गया होगा कि प्रशांत किशोर को जितने भी वोट मिलते हैं वो इन दोनों में से कहां से आएंगे। Yes, quite a complex picture जो आपने पेंट की। I think what you're saying is upper caste identity पे कुछ votes and youth identity पे कुछ votes, not so much on women. मैंने उनसे prohibition के बारे में भी पूछा था। He's anti-prohibition. He doesn't think it will hurt him with the women voters. पर ये भी एक फैक्टर है देखने के लिए। अब अंत में आते हैं, महागठबंधन की बात करते हैं। आपने कहा SIR has been a new factor. तेजस्वी यादव को अभी ही मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। नाउ यू आर सीइंग वन साइड हैज डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टरियल कंटेंडर, द अदर साइड डज नॉट। द अदर साइड हैज सेड, जो एनडीए की साइड है, चुनाव के बाद तय होगा, राइट? अगर आप पिछला चुनाव देखें तो आरजेडी वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। आपको क्या लगता है कि इस बारी और पिछली बारी के मुताबिक में कुछ बदला है? वी सॉ a very high voltage campaign by Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav on what they called vote चोरी। आपने कहा भी है SIR is a factor। कितना असर पड़ेगा कि आपको लगता है कि वो मुद्दा बहुत जल्दी पीक हो गया और आज शायद इतना मुद्दा नहीं है वो? बिल्कुल, देखिए पिछले बार की जहां तक बात करें, जो कि सबको नजर आता है कि दोनों गठबंधनों के बीच में केवल 12,000 वोट का था, दोनों को 37% वोट मिले थे। बट इसमें बहुत बड़ा बट एलजेपी ने, जिसने कि केवल जेडीयू के अगेंस्ट चिराग पासवान की पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए थे, उन्होंने, मैं आपके दर्शकों को और सबको बताना चाहता हूं कि यदि मान लिया जाए जो आज की परिस्थिति है, एनडीए में चुनाव लड़ा होता था चिराग पासवान ने, तो एनडीए को 30 अर्थमेटिक के हिसाब से 33 सीट्स ज्यादा मिलते और 36 प्लस 6% पूरा भी ना मिले तो 4 तो पक्का मिलता था, 41% वोट मिलते एनडीए को। तो उस लिहाज से 158 सीट मिलती instead of 125 which they won last time. But this time they are contesting, LJP is contesting under NDA umbrella, तो एक बड़ा अंतर ये है। अब बात करते हैं कि अभी जो प्रेजेंट में कैंपेन चलाया राहुल गांधी ने, वोट चोरी और वगैरह वगैरह, और तेजस्वी यादव ने, उसका क्या असर होगा? मैं वापस वही कह रहा हूं कि जो कैंपेन का जो असर होता है वो होता है जनता के सरोकार के विषय के लिए कौन कितनी बात कर रहा है और किससे कितनी उम्मीद की जाए बेस्ड ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस। जनता, देखिए, जिसका वोट कटेगा केवल उसको ही निराशा होगी या शायद वही होगा और वो वोट करने नहीं जा रहा। जिसका वोट कटा ही नहीं है, तो जो इनका कैंपेन चला उसको इससे ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसको इससे कुछ लेना ही देना नहीं है। तो ये एक बड़ी बात होती है। जहां तक ओवैसी का भी आपने जिक्र किया, पिछली बार सब ये कहते हैं कि ओवैसी ने सबसे, यदि ओवैसी नहीं होते तो शायद महागठबंधन या तेजस्वी यादव की सरकार बन गई होती। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सामने अर्थमेटिक रखी हुई है। मैं बताऊं आपको कि 20 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा एआईएम ने और उसको मिली 5 सीटें और डैमेज 1 सीट पे किया उन्होंने। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे एलजेपी यदि एनडीए के साथ लड़ी होती तो 158 सीट आती एनडीए की, उसी प्रकार से यदि ओवैसी नहीं होते, चुनाव में नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे होते, तो 1 सीट ज्यादा आती महागठबंधन की, जो उनकी 110 सीट आई, उससे 111 सीटें आती। तो उस हिसाब से ओवैसी का वोट कंसोलिडेटेड सीमांचल के एरिया में 20 सीटों के ऊपर थी जहां मुस्लिम बाहुल है, ये हिसाब से पूरा का पूरा गणित बैठता है बिहार। अब मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहती हूँ, वुड यू देयरफॉर से, अगर आप कहते हैं कि वोट चोरी कैंपेन का तो उसी पे असर होगा जिसको लगता है वो वोट ना कर पाए या जिसको लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, एज एन ओवरऑल इशू इट मे नॉट यील्ड मेनी डिविडेंड्स,
Do you believe that it is advantage NDA or do you believe कि ये बहुत बहुत close fight है? नहीं, मैं ये कहूँगा, देखिए, मैं क्लोज फाइट तो उस सेंस में नहीं होता। हकीकत यह है कि आज की डेट में बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जनरली हर स्टेट में 20-30% होता है, यहाँ 30 से 40% का फ्लोटिंग वोटर है, और उनमें से भी लार्ज सेक्शन ने डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे आपने बताया पीके है, एनडीए है, महागठबंधन तेजस्वी प्रसाद है, भाई किसको वोट करना है? तो आई एम प्रिटी श्योर कि अब जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, नाम लेने का कल आखिरी दिन था, वापस हो चुका है, अब हमारी टीम जब मैदान पे जाएगी तो शायद बेहतर पिक्चर आएगी। आज की डेट में मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि एडवांटेज या क्लोज फाइट, ये दोनों बातें किसी की कुछ नहीं है। ज्यादा करके ये देखा गया आज के जमाने में जनता डिसाइसिव मैंडेट देती है, जो जीतेगा अच्छे से जीतेगा। एक थियरी ये भी चल रही है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते, या अगर एनडीए की जीत होती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते बाय द एनडीए, तो नीतीश जी दोबारा साइड बदल सकते हैं, क्योंकि वो इतनी बारी बदल चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल कुछ भी मुमकिन है। और ये तो फिर वो हर बार कहते हैं, पिछली बार उन्होंने आखिरी चुनाव भी कहा था, जनता के सामने मंचों के ऊपर जा जाके खूब बार कहा था, उसके बाद भी वो अब चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने साइड बदली थी। कुछ भी मुमकिन है, किसी बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल मैं इस बात के पक्षधर हूं कि जिस व्यक्ति ने 20 साल तक सत्ता के बाहर का स्वाद ही ना चखा हो, वो व्यक्ति तो फिर कुछ कर ही सकता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। बिल्कुल, तो सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। मुझे नीतीश कुमार ने एक बहुत पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा कल आप ये कर सकते हैं, कल आप वो कर सकते हैं, उन्होंने तब कहा कल का किसने देखा है? तो प्रदीप गुप्ता कुछ नहीं कह रहे। प्रदीप गुप्ता जो पिछले पास्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता है। आपने शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन और पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन देख लिया है, तो अब इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। जी बिल्कुल, और इसी में हमारी इन अ सेंस जर्नलिज्म और पॉलिटिकल एनालिसिस में प्रदीप जी मजा भी रहता है, बिकॉज देयर आर ऑलवेज some surprises। ये है वो पुराना इंटरव्यू का क्लिप हमारे प्रोड्यूसर्स ने निकाला, बहुत पुरानी बात है, लेकिन कुछ चीजें बदली नहीं नीतीश जी के बारे में जब बात करें तो। सो मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। प्रदीप गुप्ता, थैंक यू सो मच, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा, और मैं उम्मीद करूंगी कि अगले कुछ 2 हफ्तों में पिक्चर्स पैटर्न्स विल बिकम मे बी अ बिट क्लियरर, सो वी लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगेन। थैंक यू सर, नमस्कार एंड सी यू सून। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.